کی کانفرنس میں گفتگو فرما کر ہمارے قلوب و ذہان کو معطر کرے۔ آپ کے نعروں سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو اہل محلہ کے لوگ ہیں کہ کس قدر ذوق والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، امہ اہل سنت، امہ اہل سنت۔ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن صدیقی صاحب تشریف فرما ہوئے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثمر باز قادری عطاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحکیم۔ مولانا اس کو لے جائیں، بیٹے لے جائیں، ضرورت نہیں بھیجیں اس کو اکاسوں کی جگہ سے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ وشاکان صحابہ و اہل بیت، آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جتنے بھی احباب و حضرات ہم سب شریک ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضرینہ اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم اپنے محترم و مکرم بھائی محمد عابد صاحب سے مشکور ہیں، جنہوں نے حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں اور آ کر اپنا سبق سنا کر جائیں۔ حسب وعدہ میں حاضر ہوں، علاقہ بھر کے جید علماء تشریف فرما ہیں، اور بالخصوص صدر محفل جناب محترم سید عابد حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور جن کی قیادت میں آج کی یہ محفل ہو رہی ہے محترم المقام عزت مآب علامہ محمد آصف رضا مدنی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، دیگر جتنے میری ملت کے علماء تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ ان کو بند کریں گے، بالکل بند کر دیں، تھوڑی سی بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل سادہ کر دیں۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو برکات میسر آتی ہیں۔ اگر کوئی زیادہ پڑھے گا تو جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی برکتیں ملتی چلی جائیں گی۔ اس واسطے کثرت و محبت و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کی محفل کا جو آپ نے ٹائٹل اور عنوان ترتیب دیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پرفتن دور چل رہا ہے،
اگر ہر محفل کا یہی ٹائٹل رکھا جائے تو پھر بھی شاید 10 سالوں کے بعد چل کے ہم ان برائیوں پر قابو پا سکیں. اتنی ضرورت ہے اس موضوع کی جس کا آج آپ نے انتخاب کیا ہے. جتنے کمیٹی کے احباب ہیں وہ بھی اور جتنے معاون ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس عنوان کو چنا اور پھر اس کے متعلق ہی مجھے سبق سنانے کا کہا گیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو آج کی اس نشست کی برکات نصیب فرمائے. گرامی قدر حضرات، یہ ایک سچی بات ہے کہ جس معاشرے کی اصلاح نہ ہو وہاں پر انسان نما جانور زیادہ نظر آتے ہیں، اور جس معاشرے کی اصلاح ہو جائے وہاں پر بسا اوقات جانور بھی انسانوں سے حسین نظر آتے ہیں. اس واسطے اصلاح کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ آپ یاد رکھیں، یہ جو قرآن مجید برہان رشید ہے یہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے ہی اللہ نے اپنے حبیب کو کتاب عطا فرمائی تھی. اور آج کا المیہ یہ ہے، ہر بندہ ہر مسئلے پر تبصرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. چل جائے کہ وہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس بات کو چھوڑ دیں، تبصرے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں پریکٹیکلی آ کر کوئی عمل کر کے دکھانا نہیں چاہتا، جس وجہ سے آج ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. صرف تبصرے کرنا اور بات کو سن کے چلے جانا یہ اچھی بات نہیں جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. آج آپ نے اصلاح معاشرہ یہ موضوع دیا ہے، اگر ہم سبھی سنیں اور میں اصلاح معاشرہ کے متعلق جو باتیں وہ عرض کروں، آپ کہیں واہ بھائی واہ سمر صاحب نے تو کمال کر دیا، لیکن آپ ایک بات پر بھی عمل نہ کریں تو بتائیے یہ دیواروں کے لیے تقریر ہو رہی ہے یا یہ فرش کے لیے تقریر ہو رہی ہے؟ اصل مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہم بات سن لیتے ہیں، تبصرہ بھی کر لیتے ہیں، اچھائی برائی کا 99% ہمیں پتہ بھی ہے. اب کس بندے کو نہیں پتا ہے کہ والدین کی عزت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ سب کو پتا ہے. کس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، نہ پڑھنے کے کیا نقصان ہے؟ پتا ہے. کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ رشوت حرام ہے؟ لیکن مزہ تب آئے اگر کوئی عمل کر کے دکھائے. پتا ہے عمل نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے. اس واسطے مہربانی کرنا جو گفتگو ہم سنیں گے، میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آنے والے دنوں میں، آنے والی زندگی میں اس کو اپلائی بھی کریں گے. کیا میں امید کروں کہ آپ کوشش فرمائیں گے عمل کرنے کی. یہ بات میں ابتدا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اصلاحی تقریریں تو موبائلوں میں بہت زیادہ ہے، آپ سن سکتے ہیں. اصلاحی تقریریں سننے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم عمل نہیں کریں گے. تو عمل کی طرف بھی پڑھیں. آئیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں. ہم جو سورۃ الفاتحہ شریف نماز میں پڑھتے ہیں تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایک دعائیہ تعلیم ہے. فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر میں ایک بات کلیئر کرتا چلا جاؤں. بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. ہمارے جو عام سادہ لوگ مسلم ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. بھئی یہاں سنی ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ ہوں، میرا صحیح راستہ ہے. دیوبندی کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ ہوں، وہابی کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ ہوں. 10 محرم والے بیلی کہتے ہیں اسی سیدھے راہ ہیں. میں کہڑے پاس سے جاواں؟ بس اوقات پریشان ہو جاتے ہو نا. تو ہم پہلے مسئلہ قرآن سے حل کریں گے. اگر دل کا دامن کھول کے بیٹھیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا. جو تو سمجھنے کی نیت سے آیا تو انشاءاللہ بستر پہ سوئے گا نہیں، اس کو یہ باتیں تھوڑی دیر جگائیں گی. اس نے کیا کہا ہے مولانا صاحب نے؟ اور جو سمجھنے کی نیت سے نہیں چسکا ہی لینا ہے تو میرا پوت راج کے ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تھوڑا سا دھیان ضرور کرنا. فرنٹ سیٹوں والے جتنے حضرات بیٹھے ہیں نا، آپ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. دعا کرو یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اب ہر مسلک والا کہتا ہے سیدھا راستہ میرا ہے، تو ہم قرآن سے ہی نہ پوچھ لیں کہ سیدھا راستہ کس کا ہے. مسئلہ تو تب حل ہوگا نا، چونکہ میری بات کے اوپر بھی کوئی نقد وارد کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، آپ کی بات پر کر سکتا ہے، قرآن پر تو نہیں کر سکتا نا. اب اسی آیت کے آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. فرمایا سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے نہ تم نے داڑھی دیکھنی ہے، نہ پگڑی دیکھنی ہے، نہ مدرسہ دیکھنا ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پیٹ کتنا بڑا ہے، داڑھی کتنی بڑی ہے، پگڑی اور کلگی کتنی بڑی ہے. فرمایا سیدھا راستہ اگر تم دیکھنا چاہو کس کا ہے تو فرمایا اسے دیکھنا جس پر اللہ کا انعام ہو گیا ہو. یہ موبائل سے نکلے بیٹے، موبائل یہ بھیج پا یہ پاچھے دی کر پتر تقریر سن، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا. سمجھ آئی نا؟ اور نوجوانوں یہ آپ کے لیے ضروری ہے. مجھے عابد بھائی کہہ رہے تھے کہ نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پیغام دے کے جائیں، تو
तो इसलिए भैया आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे। तो गिरामी कदर हज़रात, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सीधा रास्ता किन लोगों का है? फरमा जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। अब फिर लोग आ जाएंगे बाजार में, मेरे ऊपर अल्लाह का इनाम है, मेरे 2 मदरसे थे अब 3 हो गए। दूसरा कहता मेरे ऊपर इनाम है, मेरी 1 दुकान थी दूसरी हो गई। तीसरा कहता मेरे ऊपर इनाम है, मेरी पहले 1 मस्जिद थी अब 2 हो गई। भाई आप किधर जाए? समझ आई ना? सीधे रास्ते के लिए भी लोग मैदानी अमल में थे, और जब इनाम की बात हुई तो तब भी वो बताते हैं मेरे तो इनाम है, अब किधर जाएं? नहीं भाई नहीं, कुरान तन्हा नहीं छोड़ता है। कुरान मजीद के 5वें पारे में फिर रब ने फरमाया कि जिस पर इनाम हो वो अपना तारुफ अपनी औलाद से ना करवाए कि मेरे 3 बच्चे थे 4था हो गया है, अपनी दुकान से ना करवाए कि 2 दुकानें थी 3 हो गई हैं, अपनी फैक्ट्रियों से ना करवाए कि ये इनाम है। अगर ये हलाल के हैं तो इनाम है, लेकिन असल बात क्या है? इनाम किस पर है? अल्लाह फरमाता है अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमा अल्लाह ने जिन पर इनाम किया है उनमें सबसे पहला तबका नबियों का है, दूसरा सिद्दीकों का है, तीसरा शहीदों का है, चौथा वलियों का है। आवाज कमजोरों वाली है, दाता की नगरी में रहने वालों की आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए। बुलंद आवाज से फरमाएं। ये है वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है। अल्लाह ने खुद इन तबकात का जिक्र फरमाया कि मेरा इनाम नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। अब ये लोग इनाम याफ्ता हैं। अब क्या मतलब निकला? जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर जुमला समझ आए तो फिर बोलना है। या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सीधा रास्ता किन का है? फरमा जिन पर इनाम हुआ। इनाम किन पर है? नबियों पर, वलियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर। पता चला जो नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और वलियों के रास्ते पर हो वो है सीधे रास्ते पर, वो है सच्चे रास्ते पर। अच्छा, इसको मैं जरा अपने खतीबाना लहजे में ढाल के बताऊं आपको। इसका मतलब ये निकला, हजरात उलमा की तवज्जो मैं ज्यादा चाहता हूं इस मसले पर ताकि इनकी ताईद मिल जाए, फिर आप समझे। नबियों के बाद 3 दर्जे हैं, सिद्दीक, शहीद और सालेहीन। इन सब को वली कह लिया जाए तो बात मुकम्मल हो जाती है। समझ आ रही है? इसलिए मैं थोड़ा सा खतीबाना लहजे में कहना चाहता हूं। मतलब ये निकला कि नबियों और वलियों पर अल्लाह का इनाम है। अब जो सीधे रास्ते पर चलना चाहे वो किस रास्ते पर चले, कुरान का फैसला दे रहा हूं, और फिर देखूंगा आप किस म्यार से सुनेंगे। फरमाया कि जो नबियों और वलियों के पीछे चले वो सीधे रास्ते पर है, और जो नबियों वलियों से चले वो गलत रास्ते पर। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। बात समझ आ रही है मेरी आपको? 3-4 बंदे खामोश बैठे हैं, अगर आपको समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह से अल्लाह की पाकी बयान करनी है। दोबारा फिर समाअत फरमाइए। इसको मैंने आसान करके आपकी खिदमत में अर्ज किया है। दोस्तान गिरामी, जो नबियों वलियों के पीछे चले, और मैं अक्सर ये कहा करता हूं, आप ये ना देखा करें कौन तकरीर कर रहा है, उसकी तकरीर सुन के देखें। अगर तो उसकी तकरीर होने के बाद तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़े, रसूलुल्लाह की मोहब्बत बढ़े, सहाबा की मोहब्बत बढ़े, अहले बैत की मोहब्बत बढ़े, वलियों की मोहब्बत बढ़े, तो समझ रहा हूं किसे कामदा है। और अगर मोहब्बत ना बढ़े, उठा के फेंक दो, बेशक वो डॉक्टर है या प्लम्बर है या मिर्जा है, उठा के नालियों में डाल दो। ऐसे बेहया की हमें जरूरत नहीं, हमें वो दरवेश चाहिए जो इन दुनियों से उठा के हमें दाता की चौखट तक लेके चला। जो है कि कोई नहीं, आप सभी हजरात की मैं क्या कह रहा हूं। इस वास्ते आप तकरीर के जुमलों पर गौर किया करें कि तकरीर सुन के आप क्या महसूस करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इन हकायक को समझो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये मसला हल कर दिया है। अब मुनसिफ मिजाज बंदा, दूसरे बंदे से हमारी बात ही नहीं होती, और दूसरा बंदा हमारी बात सुन भी नहीं सकता, क्योंकि हम आला हजरत के मलंग हैं, हजरत अत्तार के मुरीद हैं। आम बंदा हमारी बात नहीं सुन सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं जरा दिल गुर्दे वाला बंदा सुने। मेरे दोस्तों, असल हकीकत ये है, कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़कर, अहादीस करीमा का मुताला कर कर अगर उसके बाद भी बंदा सीधे रास्ते पर ना आए तो कब आएगा? लेकिन अगर आप देखना चाहें तो फिर तायराना नजर दुनिया पे यूं डाला करें कि जो बंदा तकरीर करे और वो हमें अपने बुजुर्गों से जोड़े,
मैंने कहा हमें अपने बुजुर्गों से जोड़े, समझ लो कि वो सच्चा बंदा है, और जो बुजुर्गों से तोड़े समझ लो वो खुद कटी पतंग है, उसका तो अपना ठिकाना कोई नहीं, तुम्हें क्या जोड़ेगा। इसलिए इस मसले को अपने ज़हन में रख लो कि जो बुजुर्गों से जोड़ दे और बताए कि हमारा ये अकीदा है। मुझे मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका जुमला याद आ गया। आप फरमाते थे लोगों मकान चेंज कर लेना, गाड़ियां चेंज कर लेना, कपड़े चेंज कर लेना, लेकिन कभी अपना अकीदा ना चेंज करना। आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, जाग के बैठिए मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा ये भी सुन लें कि तकरीर के अंदर ज्यादा सुभान अल्लाह कहना जरूरी नहीं होता, कोई फराइज वाजिबात नहीं है तकरीर के, लेकिन ज़ौक़ जरूर है। अगर आप कहते रहेंगे तो मेरा जी चाहेगा कि मैं कुछ और भी सुनाऊंगा आप हज़रात को। गिरामी कदर हज़रात, अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को। दोस्ताने मुकर्रम, हर शय बदल सकते हैं आप, लेकिन पर मैं अपना अकीदा नहीं बदलना। और यहाँ पर एक बात और भी सुन लो, अपना अब्बा भी ना बदलिया कर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बस औकात लोग अपना बाप बापा भी बदल लेते हैं ना, 5 साल इधर थे 5 साल उधर, और फिर बाद में जनाब कमरे में बैठकर कहते हैं मैं बहुत बड़ा मुबल्लिग हूँ, मैं पहले जनाब सुन्नी भी था, वाबी भी था, शिया भी था, देवबंदी भी था, फलाने में था, फलाने में पास हो आया तेनों किसे नहीं संभालिया। वो सुन मैं नस्ली गौसे आजम क्या बोला, बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा हूँ, तवज्जो फरमाए भाई, तवज्जो फरमाए। को गाल समझ आई कि कोई नहीं आई। लोग ऐसे मुबल्लिग बन के बैठ, मैं सारे पास गया मैंने कितने भी सही नहीं नजर आया। मैं कहता मतलब 1400 साल तो कोई भी सही नहीं, तू सही जमे है, बता फिर कुरान सही किस अमल किसने किया है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली आवाज नहीं, तकड़े होके बैठो। दोस्ताने गिरामी, इस बात से हकायत को समझा करो। 1400 सालों के बाद दिमाग खराब करने के लिए लोग आ जाते हैं। ऐसे लोगों की बातों में ना मैं पहले बता चुका, ये कटी पतंगे हैं, कटी पतंगों के पीछे नहीं, ये आपका सिलसिला होना चाहिए, सिलसिला। हज़रात उलमा बैठे हैं, हमारे मुहद्दिसीन का उसूल है, जब कोई हदीस बयान करता है ना कहते हैं इसकी सनद पढ़। आपको पता सनद किसे कहते हैं, इस बात को समझिएगा जरा, और फिर आपको ये जुमला समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सनद का मतलब ये होता है, मैंने बयान किया ना तो मैं सबूत दूं कि मैंने किससे सुना है। मैंने अल्लामा साहब की बला से सुना है, ये सबूत है किससे सुना है, मैंने उनसे सुना है, उन्होंने उनसे, उन्होंने ताबईन से, उन्होंने सहाबा से, उन्होंने नबी पाक से। ये सिलसिला जाना चाहिए। मैं आख्या जे सिलसिला ही ना आगे जावे हो तो फारिग होता है। सुन्नी एक तू है, यहाँ से लेकर मुस्तफा तक तेरा सिलसिला जाता है। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को, ये जिसका सिलसिला ही नहीं। मैं आख्या तेनों तो क्रॉस पे होया है। मैं तो पहले ही दसिया सी, तुसी कई बंदे मेरी गल नहीं सुन सकते, लेकिन मैं करदा इस वक्त तकड़े होके बहुत थोड़ा जिहा। समझ आई ना, बिल्कुल फ्रंट सीटों वाले जरा जाग के बैठिए। इस वास्ते ये जो कटी पतंगे होती है ना, इनके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। बेचारे 100-150 साल की पैदावार है यार, और कई तो 1.5 की पैदावार है। हाँ, कोरोना आ गया तो लोग घर बह गए, तो उन्हें भी सोशल मीडिया से बह के नेर पाना शुरू कर छड़िया। मैं क्या कह रहा हूँ यार, हाय हाय हाय, जरा इसको जागो यार, मैं क्या कह रहा हूँ। ओ दोस्ताने मुकर्रम, खुदा के लिए इन मसाइल को समझो जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात के मुताबिक कुरान और हदीस को समझोगे तो फिर लुत्फ आएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? बेचैनी खत्म करें, जरा दाएं बाएं देखना, अपनी बातें करना बंद करें ताकि मैं आपको बात समझा सकूं। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया, लेकिन फिर भी लोग बेचारे आकर बातें तो करते हैं ना कि यार हमारी इस्लाह की जाए। मैंने कहा बेटा इस्लाह कैसे की जाए, वो जब तकरीर करेंगे ना तो वो कभी जनाब पड़ोसियों के हकूक बयान करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बीवी के हकूक बयान करेंगे, अच्छी बात है। माँ बाप के हकूक बयान करेंगे, मैंने कहा ये उससे भी अच्छी बात है। समझ आ रही है? वो हर चीज के हुकूक बयान करेंगे और जनाब बताएंगे ये इस्लाही तरीका, इस पर अमल करो। मैंने कहा ये सब कोई ठीक है। मैंने कहा अगर हिम्मत है तो कभी इस्लाही अकीदा पर भी तकरीर करके सुना दो। आगे से पता क्या, नहीं हम इन बातों में नहीं पढ़ते। मैंने कहा इसीलिए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ते।
तवज्जो नहीं फरमा रहे। क्यों? इसलिए कि जब तक अकीदा ठीक ना हो तो बात बन ही नहीं सकती। अकीदा ठीक होना तो जरूरी है। बहुत छेती कर सेट करके पीछे हो जा, मेरा चन्न है सारे तेनू वेखण डे ने, पता नहीं कित्थे उंगल दिंदा पिया। तवज्जो फरमाना भाई, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा, मैनू तकरीर भुल जाती है। सुनियो, अलामा साहब नूं अगे आण दिओ जी, माशाअल्लाह आप तशरीफ लें, बिस्मिल्लाह। अगर कोई मेरे जैसे तलबा बैठे तो वो नीचे जा सकते हैं ताकि बड़ों को जगह मिल जाए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। अगर सारे बड़े बैठे मेरी कुर्सी थले कर दियो, नाराज तो नहीं हो रहे आप? कोई भी नाराज ना हो। उलमा के लिए मैं कह रहा हूँ कि उलमा को जगह मिल जाए, मेरी तो खैर है ना जी। दोस्तानी अजीज, अब इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। गिरामी कदर हज़रात, इधर देखो, मेरी बात सुनो ताकि मैं मसले वाली बात आपको अर्ज करूं। आपने इस्लाह मुआशरा का है, बताऊं तो सही, इस्लाह शुरू कित्थों होनी है? जो नहीं फरमा रहे, इस्लाह शुरू कहां से होगी? सुन लीजिए, इधर आओ। असल में दो चीजें हैं, एक है अकीदा, एक है अमल। जब इस्लाह की बात की जाए, मैं क्या मौलाना साहब तकड़ा हो, अकीदे की इस्लाह भी कर, अमल की इस्लाह भी कर। या अमल की इस्लाह करने वाले बहुत मिलते हैं। मैं क्या पुत्र, हमारी बुनियाद अगर अकीदा है तो पहले अकीदे की इस्लाह करो। ये बात बड़ा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, इस बात को ना समझा करे। नहीं नहीं हजूर ये गल्ला ना करो, मैं क्या हजूर ने कीतियां ये रे ते मैं सुन के ना सुनावा। कहां बैठे हैं यार? गिरामी कदर हज़रात, अकीदे की इस्लाह भी हो, अमल की भी हो। सुन लें, अकीदे की इस्लाह इसलिए जरूरी है, अगर ये बंदे का अकीदा बिगड़ जाए, जन्नत में भी हो तो बाहर आ जाता है। समर साहब एक ही में कह रहे हो। मैंने कहा शैतान इबादत बहुत करता था, इस्लाह वाले अमल बहुत करता था, तवज्जो फ्रंट सीटों वाले तरह सारे काम करता था, लेकिन अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और अपने कर्म से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकामो, उलूमो, रिफतो, मर्तबा अता की, तो फरिश्तों से फरमाया इनको सजदा करो। सजदा भी ताज़ीमी था, इबादत नहीं था। तो सबने किया, शैतान ने नहीं किया। हालांकि इमाम राज़ी लिखते हैं 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत करता रहा वो इब्लीस, अज़ाज़ील, वो शैतान, 6 करोड़ साल। अब जब सजदे की बात आई, आदम अलैहिस्सलाम को कहता नहीं करूंगा, हालांकि ताज़ीमी था, ताज़ीमी आदम न कर सका। समझिए, हुण पता लगेगा सुनिया दा बोल दो कि नहीं। ताज़ीमी आदम अलैहिस्सलाम न कर सका, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। था जन्नत में। अब्बास कहते हैं उसने एक सजदा छोड़ा तो शैतान बन गया। मैं क्या नहीं हो शैताना, ये सीने च गल लगी हो, बोले दुए ने छुट्टी है। मैंने कहा सजदा नहीं छोड़ा था, सजदे तो वो करता था 6 करोड़ साल के में कीते ने। जे मां दा दूध पीता ही तो मौलवी जुरत नाल मसला दस, अल्लाह को सजदा करने से उसने इनकार नहीं किया, लेकिन नबी की ताज़ीम से इनकार किया। शैतान की तारीफ ही ये है, रब दी इबादत रज के करता है, नबी दी ताज़ीम कर ही नहीं सकता। जिसको समझ आइए वो बोले, जिसको समझ आइए वो बोले। कमाल वाली बात है। मैंने बता दिया आपको, लब दे रवे आ जाए। और बात क्या करे, रिसर्च करो गूगल पे। मैं कहा गूगल पे नहीं, और गोंगलू कुरान पढ़, पता लगे कुरान में क्या है। ये कुरानी फैसला है। कोई खड़ा होकर चैलेंज करना चाहे, चैलेंज करके दिखाए। नहीं तो इसको चैलेंज करके दिखाए। वो जो इब्लीस था, अल्लाह की इबादत की, लेकिन जब फरमाया नबी की ताज़ीम कर तो ना कर सका, वहीं पर बेअदब हो गया। और जब बेअदब हुआ, अकीदा बिगड़ा, फरमा निकल जन्नत से, निकल गया। सिर्फ ये नहीं फरमा निकल जन्नत से, फरमा तेरे ऊपर लानत भी हो, लानत भी क़यामत के दिन तक हो। अकीदा बिगड़े ना सिर्फ जन्नत से महरूम होगा, लानत भी पड़ेगी। समझो है। और जब अकीदा ठीक हो जाए, अदब वाली सब में आ जाए, उस वक्त फिर जात पात नहीं पूछी जाती। मैं रुक गया हूं ना ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहने लगा हूं। जात पात नहीं पूछी जाती। आप कहेंगे मौलाना इसका क्या मतलब है? मैंने क्या मतलब कुरान में है, 15वां पारा सूरतुल कहफ, वो जो असहाबे कहफ साथ अल्लाह के वली थे, उनके पीछे चलने वाला कुत्ता, कई अपने तो कई फिर चुप
शाह बन के बैठे ने। हम चुप शाहों के मानने वाले नहीं, उन शाहों के मानने वाले हैं जो नेज़ों पे चढ़ के बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है? अगर ऐसे शाहों को आप मानने वाले तो तकड़े होके बैठो सरकार, गोडे छाटो संगिया चौकड़ियां मार के बैठो, तकड़े हो जरा। अब देखना इधर जितने अहबाब हजरात अहले मोहब्बत तशरीफ फरमाए गौर करना, जब बंदा जब सही नजरिए पर आ जाए जात पात नहीं पूछी जाती। कायनात की किसी फर्द मखलूक का फर्द हो फिर उसे जात पात नहीं पूछी जाती। असहाबे काफ के साथ वली जा रहे थे, समझ आ रही है? असहाबे काफ उनको कहा जाता है, साथ थे। 15वां सवारा पढ़ कुरान, कहते हम तो कुरान से बाहर जाते ही नहीं। तो मैं कभी बेचा में था, खास कमजोरों वाली है, कभी बेच में आओ तो पता चले। कुत्ता पीछे चल पड़ा। तफसीर कुर्तबी पढ़ के देखो, उनमें से एक ने कंकर उठा के मारा, पंजाबी च वट्टा कहते ने। उन्हें आखिया या अल्लाह मैनू जुबान दे, मैं तेरे बंदियां नाल गल करा, मैनू वट्टा क्यों मारे है? यहाँ पर एक नुक्ता है, मैं अर्ज करता हूँ अल्लाह करके समझ आ जाए। लग रहा है कुत्ते नू भी पता सी सूफी कोई नहीं मारते होंगे। क्यों हजरत जी? सूफी नहीं मारते। उसको अल्लाह ने जुबान अता फरमाई, वो बोला और कहने लगा मुझे क्यों मारा है? उन्होंने कहा तू कुत्ता है, तेरी आदत है भौंकना, कुत्ते की लॉ ऑफ नेचर ये है, वो भौंकता है। तू भौंकेगा, लोगों को पता चलेगा हम अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं, वो जो फैसला करे हमें मंजूर है, तू साडे पीछे ना क्योंकि तू भौंकना है। उसने एक जुमला बोला, दाता दी नगरी आले हो सज्जे खब्बे देख लिया जे भी ये गल सुन के केड़ा परेशान होंदा ते केड़ा खुश होंदा है। उन्हें आख्या सरकार मैं कुत्ता जरूर हां पर वलियां नू भौंकण वाला नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हर सहाबिये नबी हर सहाबिये नबी हर सहाबिये नबी। तवज्जो है सब अगर आपकी, ये हर सहाबिये नबी जो नारा है ना, ये भी इस्लाह मुआशरा में बड़ा खास अहमियत रखता है। जरा राज के लाया करो ये नहाल 2 नंबर डब्बे नहीं तवज्जो फरमाई। बरतानिया की सुंडियां, अमेरिकन सुंडियां, बैठे हो, लाल बेग, खटमल, तो सही ना, कीड़े मकोड़े, काले पीले सारे वादे हो जाते हैं क्योंकि वो मानते नहीं है ना। और हुजूर ने फरमा दिया है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। इसका तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूं, फरमाया ये जितने तेरे हैं वो मेरे हैं। तफसीरी तर्जुमा है, तफसीरी समझ आई ना? इसका मतलब है हुजूर के कुल से आपा जन्नत, तमाम उलमा ने यही तफसीर बयान की। इसका तर्जुमा भी ये है, समझ आई ना? तो इस वास्ते कुरानी मजीद, ये तो कुरानी नारा है ना, लेकिन बहरहाल बात कहीं दूर ना चली जाए। वो जो कुत्ता था उसने कहा मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला मट्ठे बोलते पे हो। 2-4 इस्लाह की बातें कर लूं, मौजूद जो इस्लाह हालत है इस वास्ते। अब यहां सोचने की बात है, कुत्ता होके वलियों को नहीं भौंकता, अगर कोई बंदा होके भौंके। नहीं यार मैं लगता है थक गए हो। आबिद भाई कह रहे सन साडी कौम बड़ी जागदी है ते 12 बजे तक ना इन्हां दी घड़ियां ते 12 बजदे ने, मूंहां ते नहीं बजदे। तुसीं तो हुण ही टेंशन लई बैठे हो यार, बोलो तो सही ना, थोड़ा जिहा तकड़े होके बैठो सरकार। इस बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। कुत्ता होके वलियों को नहीं भौंकता है, बंदा होके बात करता है। मैंने कहा बता फिर तुझे कितने नंबर दूं? समझ आ रही मेरी बात की? और फिर वो थे कौन? असहाबे कहफ। बड़ा खास जुमला है, पहले स्टेज की नजर कर रहा हूं मोहब्बत के साथ। वो थे कौन? असहाबे कहफ। और उनको कुत्ता नहीं भौंका। मैंने कहा और सुनो मुस्तफा के सहाबियों की तौहीन करने वाले जालिमों, वो कुत्ताओं के असहाबे कहफ को नहीं भौंकता, तू बंदा हो के असहाबे मोहम्मद को भौंकता है। और तो समझ आई है, अगर वो कुत्ता होके असहाबे कहफ को नहीं भौंकता, ये बंदा होके असहाबे मोहम्मद को भौंके, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जो हलाली होता है वो नबी पाक की आल की भी इज्जत करता है, नबी के असहाब की भी इज्जत करता है।
समझ आइए अहबाब व हज़रात को। गिरामी कदर हज़रात, मैं जो नुक्ता मरकजी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ वो ये है, जब तक बंदे का माइंड सेट, नजरिया, अकीदा ठीक ना हो, उस वक्त तक जन्नत में भी हो तो साईं बाहर काट छड़ देना कि ये सही हो जाए। अगले यहाँ जात पात नहीं पूछने, बल्कि यहाँ पर आपको एक तफसीर रूहुल बयान का नुक्ता बताऊं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये सूरत उठाएं, उसकी तफसीर के आखिर में लिखा है, हज़रात उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। वहां पर लिखा हुआ है कि वो जो कुत्ता था ना, उसका रंग था काला। उसका रंग क्या था? काला। पर वो जन्नत में जाएगा, लेकिन वो काली चमड़ी के साथ नहीं जाएगा। बड़ी डूंगी जी गल कर लगे हाँ, जे तुसी दौड़े माइए नहीं सुन दे को कम दी गल भी सुन के बोल लेंगे, जरा परखिया दे गल नूं। वो क़यामत वाले दिन कैसे जाएगा? वो बलआम बिन बाऊरा, वो बनी इसराइल का किसी जमाने में बड़ा आबिद था, बाद में वो भी गुस्ताख हो गया। उसकी चमड़ी उधेड़ कर खाल वो इस कुत्ते को पहनाई जाएगी और इसकी काली उतार के काला बना के इनको जन्नत से ले आ जाएगा। बोलो बोलो। और पाओ काले। समझ आई है? तो खुदा दा खौफ करो, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। गिरामी कदर हज़रात, वो कुत्ता ऐसे ही जन्नत में नहीं जाएगा। खैर, मैं जो बात कह रहा हूं इसको समझिए। अकीदा भी दुरुस्त करो, अपना अमल भी दुरुस्त करो। अकीदा कहते किस बात को, जरा ये भी तो समझिए ना। अकीदा अगर लफ्जों की तरफ देखें तो उक्दा से निकला है। उक्दा, गांठ लगाना, पंजाबी कहते हैं गंड मारना। किसी चीज को जब बांधते हैं तक गंड मारने हैं ना, तो कहते जरा पक्का बन्नी हो, कहना हुण छुरी नाल ही इहनूं कट्टू। इंज दी गंड मारन नूं अकीदा उक्दा कहते हैं। अब बैठे हो, अकीदा कहते किस चीज को है? ये इसका लफ्जी माना है। और अगर इस्तिलाह शरअ में देखा जाए अकीदा किसको कहते हैं? अल्लाह ताला, तमाम रसूल, तमाम फरिश्ते और कब्र, हशर, नशर, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, इन सब चीजों पर वैसे ईमान रखना जैसे अल्लाह उसके रसूल ने बताया है और उसी पर साबित और कारबंद रहना, ये अकीदा है। आर यू अंडरस्टैंड? ये अकीदा है। और इसका मतलब ये है, ये तमाम तर मालूमात उलमा मसाइल से लेकर अपने दिल में रख के इंज दी गंड मार, शैतान टेल मारदा रवे, ओदी हर शय खोल जाए पर साडी गंड ना खुले। मैं सौखी तो सौखी गल करदा पिया। सवेरे उठ के तुसी ये तरह ना आखो यार इन्नियां औखियां गल्लां करके सानू समझ ही नहीं आई। इंशाअल्लाह जिन्ने तुसी बैठे हो 20 मिनट सवेरे तकरीर सारे ही करो। समझ आ रही है जनाब? ये अकीदा, गांठ लगाओ अल्लाह रसूल की मोहब्बत में डूब कर, जो कुरान और हदीस में अकायद हैं उन सबको अपने दिल में रख के गांठ लगा दो, ताकि कोई शैतान यहाँ आकर किसी किस्म का धक्का न डाल सके। समझ आ रही? और ये भी सुनिए, उसके बाद फिर अपने अमल की इस्लाह करो। उलमा फरमाते हैं अकीदा ऐसे जैसे गुलाब का दरख्त होता है और अमल ऐसे जैसे इसके ऊपर फूल लगा हुआ होता है। समझ आ रही है? कल्ले फूल पे मैंने तो जिन्नी है पैर ना की हफ्ता आ गया नहीं, सवेरे ये ना बस हो जाना है। क्यों? दरख्त के साथ इनका ताल्लुक नहीं है, जड़ नहीं है। समझ आ रही है? और अगर सिर्फ बूटा हो तो फूल ना हो, तो वो बूटा तो है लेकिन लोग आखना यार इहदी छां भी है, बूटा भी है, उगदा भी है, कम भी आउंदा है ओदियां लकड़ियां, लेकिन यार फूल नहीं लगा। इसलिए अकीदा दुरुस्त कर ताकि तेरा दरख्त मोहब्बत सलामत रहे, और अमल कर ताकि फूल लग जाए। जब कब्र में जाए तो फरिश्ते भी तेरा इस्तेमाल करने के लिए। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? अपना अकीदा भी दुरुस्त रखो, अमल भी दुरुस्त रखो। गिरामी कदर हजरात, लेकिन सवाल तो बनता है पहले अकीदा सेट करे या अमल? मैंने कहा पहले अकीदा। कहता दलील, मैंने कहा एक अकली एक नकली। अकली दलील ये है, जब दो बीमारियां इकट्ठी हो जाएं, एक छोटी बीमारी हो एक बड़ी बीमारी हो, बताओ पहले किसका इलाज करोगे? छोटी का बड़ी का? तगड़े होके बोलो। बड़ी का।
पहले बड़ी बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, फिर छोटी का। इदा ही ना? ओ बोलो तो सही हो, जागो सुती पई कौम, जागो तो सही ना। पहले बड़ी बीमारी का आपको इलाज करना होगा। जी मौलाना बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा और अकीदा और अमल जब दो चीजें हैं ना, अकीदा बिगड़ जाए वो बंदा भी बीमार है, अमल बिगड़ जाए वो भी बीमार है। हजरात उलमा और सादात मेरे साथ बैठे, अगर गलती करूं तो मुझे फौरन बताएं, अगर बात सही हो तो मेरी तारीफ करें। जिसका अकीदा बिगड़े वो भी बीमार, अमल बिगड़े वो भी बीमार, पर इन दोनों बीमारों में बड़ा बीमार अकीदा बिगड़ने वाला होता है। पहले इस्लाह अकीदे की करनी पड़ेगी, बाद में अमल की करनी पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात की? जिसका अकीदा अमल बिगड़ जाए, सबसे पहले किसकी सलाह करनी है? सारे बोलो किसकी करनी है? अकीदे। क्यों? ये बड़ी बीमारी है। अगर ये लग जाए, बंदा जितने मर्जी अमाल करे सारे बर्बाद हो जाते हैं। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा फिर इब्लीस बनवा के याद करो। अकीदा बिगड़ जाए तो हर शय तबाह हो जाती है। अब बात समझे मेरे प्यारे प्यारे भाई जितने बैठे, गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते पहले अकीदे को, ये थी अकली दलील। अब आ जाइए नकली दलील। नकली का मतलब होता है जिसको कहीं लिखा गया हो। कहता कहाँ? मैंने कहा कुरान में है। वो कहाँ? अगर कभी तू पढ़े इमाम अहमद रजा दे गुलामा दे को तो तेरे समझ आ गया। सुनिए, कुरान मजीद उठाओ, अल्लाह ने फरमाया आमनू व अमिलुस सालिहात, आमनू व अमिलुस सालिहात, आमनू व अमिलुस सालिहात। जहां भी आया है पहले आमनू बाद में अमिलुस सालिहात, पहले आमनू बाद में अमिलुस सालिहात। आमनू अकीदा है, अमिलुस सालिहात अमल है। मेरे रब ने भी पहले आमनू ईमान का जिक्र किया, अकीदे का जिक्र किया। आवाज फिर कमजोर हो रही है आप सभी हज़रात। और यहाँ पर एक तमसील, और वो भी हदीस पाक से। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जो भी आता था ना, और वो कहता था कि मैंने कलमा पढ़ना, तो हुजूर ये नहीं फरमाते थे कि पहले 2 नफल पढ़ के आ, तेरे को अमल होएगा तो फिर तेरे कलमा पढ़ावांगे। इस बात को कई समझे और कई नहीं समझे। जरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान के साथ बेटे बैठ जाए। खुशबू उधर लुटाएं, ये खुशबू वाला आ रहा है, आप भी इसको महकाएं, ये आपको महकाएगा, ठीक है? गुजर जाएं। लेकिन अगर आप तवज्जो फरमाएं और सुभान अल्लाह फरमाएं तो लुत्फ ना आ जाए, मैं बात समझा रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जो भी आता, आप ये नहीं फरमाते थे पहले महीने के रोजे रख के फिर बात करेंगे। हमारे सुन्नियों का ये मसला है ना, जो हमारे पास आता है हम कहते हैं पहले, दावत इस्लामी वाले भी देखे ना, वो भी कहते हैं पहले फराइज उलूम सीख ले, कोर्स होता है ना। और बस औकात कई ऐसे भी होते हैं, आप हमारे पास हैं, हो हाजी साहब वापस 40 दिन हमारे साथ चले जाए। वो अमल बताते हैं, हम अकीदा बताते हैं, ये फर्क है। और यही मेरे महबूब का अमल है। महबूब करीम ये नहीं कहते थे पहले 30-40 दिन ला के फिर आ जाए। हुजूर फरमाते थे पहले पढ़ मेरा कलमा। सुनियो, बोलो ते सही ना? क्यों भाई? मैं आपको एक बात बताऊं ताकि लुत्फ आ जाए। जंगे हुनैन हो रही है, नबी करीम अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, जंग हो रही है, 12,000 का लश्कर हुजूर के साथ है, 30,000 का लश्कर सामने है, जंग हो रही है, बंदे शहीद हो रहे हैं। एक बकरियां चराते चराते हबशी वहां आ निकला और हुजूर के पास आके कहता है क्या हो रहा है? तो आपने फरमाया तुझे नहीं नजर आ रहा? कहता नजर तो आ रहा है, जंग हो रही पर मैं हैरान हूं, इधर से बंदे मार रहे हैं, इधर से मार रहे हैं। फरमाया हाँ। कहे किधर जा रहे हैं, क्या मसला है? फरमाया जो उधर से मार रहे हैं वो जहन्नम में जा रहे हैं, और जो मेरी तरफ से जा रहे हैं वो जन्नत में जा रहे हैं। अभी नहीं, बात खत्म नहीं हुई अभी। उसने कहा अगर मैं जंग लड़ूं तो किधर जाऊंगा? फरमाया अगर उधर जाएगा तो जहन्नम में, अगर इधर आएगा तो जन्नत में। तवज्जो। उसने कहा चलो ठीक है, फिर कभी कलमा पढ़ेंगे। इतनी बात की और बकरियां लेके चल पड़ा। मेरे हबीब मुस्कुराने लगे और फरमाया और एक गाल सुने ना भाई, ये तू कलमा पढ़ना ही नहीं सीखे, इतनी तफसील क्यों पूछी है? नहीं तवज्जो फरमाई। और यहाँ पर ना हमारे उस्ताद साहब ने एक बड़ी सोहनी बात बताई। वो कहने लगे पता नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे क्यों बुलाया था? फरमाया लगता ये था कि उसका रंग बिलाल हबशी से मिलता था, हुजूर को पसंद ही बड़ा आ गया होगा, इसलिए हुजूर ने तलब फरमाया। फरमाया इधर आना भाई, ये तू कलमा पढ़ना नहीं सीखा, गाल पूछी क्यों? उसने कहा हजरत मेरी भी एक मजबूरी है। केड़ी? फरमाया मैं तुहाडे पासों जंग लड़ा तो किधर जावांगा? कि जन्नत दे विच। ते फरमाया मेरियां बकरियां वेख रहे पे हो? हां जी वेखदा पिया। फरमाया ए पूरे महल्ले दियां किसी दी 1, किसी दी 2, किसी दी 3, किसी दी 4, मैं जो इत्थे शहीद हो के जन्नत टुर जावां तो जन्नत दे बूहे ते साईं मैनू डाक लैण दी कढ बकरे। ओ मेरा देसी जी अंदाज है, हाथ चौक के बोलो सुनियो। जिन्ने
मट्ठे हो जाओ, लेकिन असी चाहते हैं तुसी लब्बैक दा नारा भी इंज मारो कुफर दा सीना पाड़ जा कर या रसूल दा नारा के टप जाओ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह, खैर हो बुजुर्गों की। बुजुर्ग जवान हो जान ते जवान तक पहलवान हो जाते। जवानों हुण तुहाडी बारी आ गई, हुण 5 किलो का सिर नहीं हिलाउणा, बस छटांकी वाली जबान ही हिलदी है। जाके बैठिए जरा। वाह भाई वाह, आबिद साहब वाकई तेरे बंदियां दा शौक है। अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए और मदनी मिलाद कमेटी जिंदाबाद। जितने अराकीनों मेंबरान अल्लाह सबको खुश रखे। ये अपनी गलियों में अपने मोहल्ले में ऐसा शौक बांट दो, यहाँ कोई गुस्ताख रसूल आ जाए तो रह ना पाए तो ये कि हजूर दे आशिकां दा मल्ला है। तगड़े हो जाओ जनाब, बात समझ आई आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, ये जरा परहेजी कलमा पढ़ते हैं ना, केड़ा जी परहेजी कलमा पढ़ लिया यार, सुनने का कई शिरक ना हो यार, मैंने कहा कई शिरक ना हो जाए। ओ मैं आखो शिरक ही को पापड़ नहीं जेड़े तू 150 दे लेके बन देने ने। अल्लाह दा नाम मन, हुजूर ने फरमाया सुनो, बुखारी शरीफ में है, वल्लाहि मा अखाफु अलैका अन तुशरिकू बादी वलाकिन अन तनाफसू फीहा। फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत मुशरिक हो जाए ये मुझे डर नहीं है, ये मुशरिक नहीं होंगे। हाँ दुनियादार हो जाए तो अलग बात है, आज दुनियादार जरूर हो गए पर मुशरिक नहीं है। सजदा कल भी रब को करते थे, सजदा आज भी रब को करते। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? ऐसे परहेजी कलमा पढ़ना मेरे जुमले का लुत्फ लिया जाए, जिन्हें नहीं लेना उन्हें तो लेना, तो बेजौका बंदा है। मैं ज़ौक वाली दुनिया से बात कर रहा हूँ। परहेजी कलमा ना पढ़, जने आला पढ़। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस अनवर अतहर मुतहर मुनव्वर मुअम्बर में वो शख्स अर्ज करता है, मैं जो जन्नत के बूहे ते खलोता मैं तो बंदे आ जान भी काट साडे बकरे, तैनू तो जन्नत ही पई सी, साडे ले ले सारे खाई राह छड़ गए हैं। सही ना यार, समझ आ रही है जी? अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे बुजुर्गों। तो फिर मैं किधर जावांगा? हुजूर अकरम मुस्कुरा पड़े, फरमाया देसी बंदे दी गल देसी हुंदी है ना, बड़ी सादा जी गल हुंदी है। तवज्जो है भी सामने वालों की? आका करीम अलैहिस्सलाम ने ना आगे जो बात कही, मैं आप आहिस्ता बोलूंगा और आप आपकी आवाज मैंने चेक करनी है। हुजूर ने फरमाया अगर तेरियां बकरियां मैं हर बंदे दे घर अपड़ा दियां तो फिर अच्छा उन्हें ना उन्हें क्या हुजूर अगर ये हो जाए तो मैं इथों कदम पीछे ही ना पटता, मैं तो आड़ा कलमा पढ़ा दिया जेड़े सामने काफर खड़ोते ने ना दे मैं छौड़े पट करा। तवज्जो नहीं फरमाई को पंजाबी दे जुमले भी होने ने ताकि लुत्फ आ जाए। हुजूर ने फरमाया फिर चलो आज नजारा देख और देखना फिर दाता साहब की नगरी में रहने वाले आशिक कैसे बोलते हैं। आपने मिट्टी की एक मुट्ठी भरी और बकरियों की जानें फेंकी और उसे कहने लगे बता तेरा मोहल्ला किस तरफ है? उन्हें आके हुजूर ये पहाड़ियों के पीछे है। मेरे नबी ने नबूवत वाले जदुल्ला के हाथ गोरे गोरे उठाए, ऐसे किया पहाड़ हट गया और वो शहर नजर आने लग पड़ा। नहीं 5-7 बंदे हाथ थले रखे बैठे, दो नबरी ना करो। के अंदर पढ़ो जंगे हुनैन का वाकया। आवाज कमजोर नहीं फरमानी भाई। गिरामी कदर हज़रात, हुजूर ने ऐसे हाथ का इशारा किया, पहाड़ हट गया। मैंने कहा पहाड़ भी जानता है कि हुक्म मुस्तफा का है। उसने रास्ता छोड़ दिया। उसने जब रास्ता छोड़ा तो सामने वो गांव नजर आने लगा, देहात पिंड शहर जो भी था। फरमाया और कहता जी वही है। फरमाया हुन बकरियां घर चलिए।
आखिर हाँ जी, अब मेरे नबी का जुमला सुनना, फिर गल उत्थे आ गई वारी तुहाडी है। आपने बकरियों को कहा जल्दी जल्दी अपने अपने मालिका के घर जाना, इन्हें कोई नहीं जाना। बकरियां वहां से भागी और हुजूर ने फरमाया अभी जंग पे नहीं जाना, देख ले अपने घर गई ने कि कोई नहीं गई। हुजूर ने इशारा किया, बकरियां सीधा अपने घर गई। ओए उस नबी दे तुसी कलमा पढ़न वाले हो जिहदियां बोलियां जानवर भी जानदे ने। अगर जानवर बोलियां मान लेते हैं इंसानों, हमें भी तो मान लेना चाहिए ना। समझ आ रही है अज़ीज़ान मुकर्रम? यही तो बातें हैं, हम नबी पाक की बातों को अहमियत नहीं देते। ये एक इजाफी जुमले के तौर पर मैं बात समझा दूंगा आपको, और फिर यहीं से बात को, इस हदीस को आगे मुकम्मल करेंगे। आज घर में मेहमान आ जाए ना, इस्लाह के साथ इसका भी बड़ा ताल्लुक है। घर में मेहमान आ जाए, सबसे पहले इसको बोतल पेश करेंगे, और कोल्ड ड्रिंक के, पता नहीं हूँ कोल्ड ड्रिंक ही कहते ना, ज्यादा पढ़ के ना मुंह ही विंगा कर लेते हैं। अच्छा कोल्ड ड्रिंक, चलो कोल है या गोल है या जिथे भी है, वो बोतल दे जी इनू, कहता मैं नहीं बोतल पीनी। अच्छा जी चाचू जी बोतल नहीं पीनी, ते तुहाडे वास्ते शिकंजवी बनाइए, कहता नहीं मैं नहीं पीनी। अच्छा चाचू जी ये नहीं पीनी, ते तुहाडे वास्ते लूणी लस्सी, कहता नहीं ये भी नहीं पीनी। चाचू जी ये नहीं पीनी, और कल सादा पानी। मैं ओके हो गया। बाद बारी आ गई चाय दी, चाय पिलाइए बगैर मिठे तो। मैं क्या मिठा हराम हुंदा है? फिर नहीं पींदा क्यों नहीं? कहता नहीं पीना, बाद च दसना तेन। रोटी की बारी आ गई, ब्रायलर नहीं खाना, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटा गोश्त कहता लबड़ा ही नहीं। मुझे नहीं फरमाई आप हज़रात, मुझे नहीं फरमाई, थोड़ा सादा बहुत है ना, इसलिए मैंने कहा था कि आप खुश भी हो जाएं। वो हुण किस्मत वाले नूं लभना है क्या? ईद भी आउंदी पई, लोगों ने हुणे ही फ्रिजा सैट करा लईआं ने। हाँ हाँ फ्रिजा ठीक हो गई है ना बाबा जी। हाँ फिर सानू मसले पुछदे ने, 10 मुहर्रम आ गई, कुर्बानी का गोश्त पिया घर, ये असी 10 मुहर्रम ताईं रख सकते हैं? मैंने कहा जी तुसी वैसे तो साल भी रख सकते हो, जे तुहाडा अपना हिस्सा है तां। मेरी बात को नहीं समझे आप? अगर आपका अपना हिस्सा है तो फिर तो आप रख सकते हैं, अगले साल तक ताक सकता है। ये ना गरीबां दा दिता है, ना रिश्तेदारां दोस्तां दा दिता है, बल्कि जेड़ा दूसरे पास आया फ्रिज रख के तो रस्सा मारिया है, फिर केड़े हिसाब ना रखी फिरना जरा। और एक दिन आउंदा ही गरीब इस ते गोश्त खांदे ने, इस दिन भी कंजूसियां करना, अखे बहुत इकट्ठा करदे ने। गरीब वाले वाले तबसरा पता नहीं यार मौलवी साहब कुछ ना पूछो, बहुत इकट्ठा कर दे जे। मैं क्या तू फिर भी नहीं दिंदा? बहुत कोशिश की थी, 8 जने से निके निके न्याणे तेरे बूहे ते आए, पर सदके जावा एक बोटी नहीं तू दे सकता। माशा किड्डा जिगरे वाला मुसलमान। अब इत्थे हो, आपको समझो मैं क्या कह रहा हूँ। दोस्ताने गिरामी, अल्लाह की राह में दिया करो। हुणे कईयां ने फ्रिजां दी ओ जनाब सेटिंग मैटिंग करके यस मैस फिट, ये उस दिन मुश्किल ना हो ना, बात कहीं दूर ना चली जाए। मेहमान आ गया, ना वड्डा गोश्त ना छोटा, ना ब्रॉयलर, परोठे कहता नहीं, अंडा कहता नहीं। असीं परेशान हो जाने, मेहमान खुदा दी रहमत है, पर आ केड़ी रहमत है? ना है कोई खाता है ना पींदा है, सादा सुक्की रोटी दाल विच लूण मिर्च ना। वो मैं आख्या परोठा हराम है? आखे नहीं। गोश्त हराम है? आखे नहीं। शिकंजी हराम है? जी नहीं। मिठी वाली चाह हराम? नहीं। बोतल? कहना नहीं। मैं कहा पीती क्यों नहीं? कहता डॉक्टर ने रोके है हलाल, डॉक्टर ने रोके है। मेरा जुमला सुनना, अगर तकरीर में इसके बाद ना भी बोलूं तो आज के तुम्हारे इस मौजू का हक अदा हो जाएगा। डॉक्टर दी आखण दे लोग हलाल चीज़ां छड़ गए हो, ओए मुस्तफा दी आखण दे कदी हराम भी छड़ के देख ला। डॉक्टर दी आखण दे हलाल छड़ गए। मेरे उस्ताद जी कहा करते थे, यार डॉक्टर को इतनी अहमियत देते हो, बताओ हुजूर को कब अहमियत दोगे? कब अहमियत दोगे हुजूर को? खुदा का नाम है यार, हुजूर की बातों को अहमियत दो। और वो एक बात कहा करते थे, वो फरमाया करते थे हुजूर ने ना, इधर देखना, फरमाया ऐसे चांद था तो चांद को ऐसे इशारा किया था हुजूर ने, चांद 2 टुकड़े हो गया था। हुजूर बोले नहीं थे, कहा नहीं था, इशारा किया था। हमसे बड़ा आशिक तो वो है
जिसे कहना नहीं पड़ा था, इशारे पर ही उसने अपना कलेजा फाड़ के मुस्तफा के कदमों में फेंक दिया। इतना बड़ा आशिक रसूल है ये चांद, या हुजूर के इशारा मान गया। और हम कैसे आशिक हैं कि हुजूर का कहना ना माने। हमें इशारा नहीं किया था कि हमें इशारा नहीं किया था, हमें इशारा नहीं किया था, नहीं, बल्कि कहा था नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने फरमाया था पगड़ी रखो ये इंसान का हिल्म है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रत, हमें कहा हम नहीं मान रहे। तो बड़ा आशिक रसूल तो वो हुआ, हम कहाँ के। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अहमियत भी दो। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम अहमियत भी देंगे? जरूर कोशिश कीजिए मेरे भाई। अजीज़ान मुकर्रम, बात कहीं दूर ना चली जाए। मैं अर्ज ये कर रहा, बकरियां भी हुजूर की बात मान रही हैं। नबी पाक ओहद पहाड़ पे जलवागर हुए, ओहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। समझ आ रही है? बाज मौलवियों का मैंने तर्जुमा पढ़ा, मैं हैरान हो गया, कहते जलजला आ गया। मैं तो या ना हो गए। अब मैं यही कह सकता हूँ, मैं क्या कहूँ। तवज्जो है जुमले का तर्जुमा भावें तो मुड्डू ना आवे, चस आई है। समझ आ रही है ना? अब ये जलजला आ गया और मैंने कहा जलजला हुजूर जहां कदम रखे वहां आएगा। फारूक आजम के जमाने में जलजला आया, आपने छोटा मारा जमीन पे, फरमाया मैं इंसाफ नहीं करता जो तू हिलती पई है। उलमा फरमाते हैं सारी दुनिया में आ सकता है पर मदीने में क़यामत तक जलजला नहीं आएगा। कि फारूक आजम ने कहा, जहाँ हज़रत फारूक आजम कदम लगाए वहां नहीं आता, जहाँ हुजूर लगाए वहां जलजला कैसे आए? अब बताऊं आला हजरत ने तर्जुमा क्या किया है? नहीं, कई बंदे चुप पेशाब बन के जिन्हें को अमानत नहीं रख के गया होगा और जागो जागो तकड़े होके। यहाँ पर उलमाए अहले सुन्नत के तर्जुमे पढ़ के देखो। मेरे शेख तरीकत सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैहि, आपने कई जगहों पे लिखा, यहाँ ये तर्जुमा नहीं लिखा कि वो जो पहाड़ था उस पर जलजला आ गया, नहीं, फरमाया वो जो पहाड़ था मुस्तफा ने उसके सीने पे कदम रखा तो खुशी में झूमने लग पड़ा कि मेरे जैसा कौन है कि जिस पर मुस्तफा के कदम लग जाए। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी। जन्नती जन्नती। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो इश्क हो तो इश्क वाला तर्जुमा आता है ना, तो जब इश्क ही ना हो अगर जलजला आ गया, बल्ले हो शेरा बल्कि बल्ले हो गिदड़ा, ऐसा तर्जुमा होता है। ये तर्जुमा बनता ही नहीं है। वो इश्क से झूमने लग पड़ा। किन्ने बंदे बैठे जो गल सुनते हैं हाय हाय कहते स्वाद आ गया। ये तो मतलब है इश्क वाली गल सुन के स्वाद आता है। जिहदे नाल इश्क कीता ये हुजूर आप आ जान ते किन्नी चस आएगी। समझ आ रही मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, बात दूर न चली जाए। पहाड़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिलना बंद कर, वहीं पर साकित हो गया। मैंने कहा आज तक कोई मौलवी, कोई दानिशवर, बल्कि दानशूर, दानशूर इसलिए कह रहा हूं, दानिशवर तो वो होता है जो हकीकत बताए, जेड़ा कूड़ मारे, झूठ बोलता है, इड्डा मुतमिन कमीना, समझ नहीं आती है किड्डे कॉन्फिडेंस ना बोलता पे, वो दानिशवर नहीं, वो दानशूर होता है, बल्कि अंग्रेजों का सूर होता है जो झूठ बोलता है। हकायक बयान करने, सीना चौड़ा करके बयान, हुजूर की इज्जत की बात है लोगों के सामने खोल के बयान कर। गिरामी कदर हज़रात, यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी। उस दानशूर को कहो, दानिशवर होता है ना, दानशूर जान के पढ़े, पता तो लगे ना। आज तक किसी ने तबसरा नहीं किया। पहाड़ के कान थे कि उसने सुन लिया? और फिर मजे की बात देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई तो पहाड़ को पता चल गया कि हुजूर आ गए। और जब हुजूर आए, अगर पहाड़ खुशी करता है तो 12 रबीउल अव्वल पे सुन्नी क्यों ना करे भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
इस पहाड़ को कैसे पता चला कि हुजूर आ गए, कैसे पता चला हुजूर ने अब ये फरमाया है? कहता ये तो नहीं पता। मैं कहा ये पता हुंदा ते तू सुन्नी ना हुंदा, तुम्हें पता नहीं है खुदा के बंदो। सैयदी व सनदी सरदार मुहद्दिस आज़म फैसलाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा मौलाना सरदार अहमद साहब कादरी रज़वी बरेलवी, समझ आ रही है? आप क्या फरमाते हैं फैसलाबाद वाले? आप फरमाते हैं कायनात का एक जर्रा भी उठाओ ना, एक तिनका भी उठाओ, उसे भी पता है कि हुजूर हमारे रसूल हैं। उसे भी पता है हुजूर हमारे रसूल हैं। और आप एक मरतबा लाहौर के उर्दू बाजार में किताबें खरीद रहे थे, बड़ी पुरानी बात है, लाहौर में ये बड़ा पुराना बाजार है, आप किताब खरीद रहे थे तो यहाँ एक 2 नंबर आ गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, महफिल पाक है। उसने आके कहा नबी को तो पता नहीं चलता, आपने फरमाया सारियां छोड़ दे। आपने वहां से एक छोटा सा उठाया तिनका, फरमाया बता इसे पता है हुजूर हैं? और साथ ही फरमाया कुरान मजीद में भी और हदीस में भी नबी पाक ने खुद फरमाया है अव्वलीन व आखिरीन, जितने मुझे जानते हैं कि मैं नबी हूँ, कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं जो मुझे नहीं जानता मैं नबी हूँ। तो कहने लगा हाँ हम भी हदीस से बाहर नहीं निकलते, तो लिहाजा ये तिनका जानता है कि हुजूर हैं। आपने फरमाया अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। फरमाया तिनके को पता है हुजूर हैं, हुजूर को नहीं पता ये मेरा आशिक है। कुछ खुदा का खौफ करो। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते हकायक को समझा करें, बात दूर न चली जाए। इस पहाड़ को कैसे पता चला? मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शय जानती। वो अलग बात है कि अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको इजहार का हुक्म दिया और बहुत सारी चीज़ों को इजहार का हुक्म नहीं दिया। इजहार का हुक्म करने का इसलिए कहा ताकि बाकियों के अंदर भी हुजूर की मोहब्बत बढ़ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते वो हो जाता। बात दूर ना चली जाए, जंगे हुनैन वाले उस आशिक रसूल के पास चलिए। हुजूर ने फरमाया बकरियां घर पहुंच गई। मेरा ख्याल है थोड़ियां अपनियां पहुंचियां खलोते नहीं तवज्जो फरमा। मेरा ख्याल है आबिद भाई ने 1 घंटा दिया टाइम दस ना, सच्चे ने जनाब घंटा तो होया खलोता है, सच्चे ने तो बोलना ही नहीं होना। चलो मैं आपकी जान छोड़ता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है, हूँ तो बोल लो सुभान अल्लाह। चुप्पी होना लीजिए। दोस्तान मुकर्रम, अल्लाह को खैर बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम तवज्जो फरमाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तवज्जो फरमाई। बकरियां पहुंच गई? जी हाँ हुजूर पहुंच गई। फरमाया हुण दस। कहंदा हुजूर हुण तुसी दसना जो कहना होना। फरमाया पहलो पढ़ कलमा। जो मैं मरकजी नुक्ता समझा रहा था वो पता क्या था कि अमल से पहले अकीदा है। ये मिसाल दे रहा, अमल से पहले हुजूर फरमा सकते थे जा फिर लड़ के आ जान, फिर देख रहे तेरा की करना। नहीं, फरमाया पहले पढ़ कलमा तो फिर लड़ जंग। उन्होंने कहा ठीक हो गया। नहीं, उसने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और सीधा जंग में गया तो वापस नहीं आया, शहीद हो गया है। अब फिर मैं आहिस्ता बोलूंगा और देखूंगा लाहौर के आशिकों को कैसे समझ आई। हुजूर ने फरमाया जिसने जन्नती को देखना हो वो इसे देख। बताओ यार इसके पास क्या था? एक नमाज भी नहीं थी बज़ाहिर, सिर्फ पहले कलमा अकीदा और बाद में हुजूर की बात मांगी। अल्लाह अल्लाह पे खैर सब। इसका मतलब है अकीदे की अहमियत है। समझ आ रही मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, अकीदे की भी इस्लाह करें, अमल की भी इस्लाह करें, जरूरत दोनों चीजों की है। अब एक घर होता है उसमें बड़ी अजीबो गरीब मिसाल बन जाती है, और हमारे लोग भी अपने उलमा से सही और अकायद से पीछे हटते चले जा रहे हैं। कभी तो हकायक को देखा करो यार। तो फिर पता की कहते हैं यार सानू नहीं समझ आती कि रली जिमें नियाजी अड्डे टुर जाओ ना, जलारी अड्डे टुर जाओ, असी जाना झंग, बंदा खलोता कहना मेरी बस जाओ, दूआ कहना मेरी जाओ, तीया कहना मेरी जाओ। बस औकात रक्शे तो सवारी लाती है ना, एक कंडक्टर न्याणे चुक के दौड़ जाता है, दूआ बैग चुक के दौड़ जाता, तीया माई का मोढ़ा फट के अपनी बस न्याणे किते किते माई किते। मैं हजूर देसी जिहा बंदा, मैनू माफ कर छड़िया, मैं देसी जिहा बंदा। वो अक नक के पता की कहनी, वो कहनी मैं जाना ही नहीं, मेरी हर सवाल
یہ حساب ہویا اج کل دی عوام دا سمجھ آئی نا وہ جاندے نے بھابیاں دی مسیتے وہ کہندے اینج جنت چ جانا ہے سنیاں دی وہ کہندے اینج جانا ہے بھابیاں دی دیوبندیاں دی اینج شیعہ دی وہ کہندا یار میں کدھر جاواں من تو سمجھ نہیں آوندی تے جڑا بندہ سیاںا ہوندا ہے نا وہ کہندا لاری اڈے نہیں جانا انہاں دا حال ہی کوئی نہیں کہندا کتھے جانا ہے کہندا آپاں جانا رجسٹرڈ اڈے دے وچ گھروں بیٹھے ہاں آپاں کال کر کے سیٹ بک کرا لینی ہے 12 بجے ٹائم نکلنا ہے تے انہیں سیدھا ہی ٹھک ٹائیاں کہنے بعد چنگ سلطان پاؤ دے شہر داتا دے شہر چل کے سلطان صاحب دے شہر کوئی ٹینشن نہیں بہترین اے سی لگا ہے چوڑا ہو کے بیٹھا ہے کیوں کہندا رجسٹر جگہ تے آیا میں کیا پترا ہون تینوں میں گل سمجھاواں جڑے کہندے نا سانو سمجھ نہیں لگدی اسی کیڑے مولوی آل جائیے میں کیا تینوں کنے آکھیا لاری ڈیریاں فرنیچراں تے پے او تو بھی داتا صاحب والے ٹیشن تے جا ارے بول سبحان برکت عطا فرمائے شان مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد ایک گھنٹہ پورا ہو گیا ہے میرا بونس جے اوور ٹائم جے بولو سبحان اللہ سنیو ناراض تو نہیں ہو رہا ہے دل نو کو گل لگی ہے میرے بھرا دے میرا گل میں کہ تسی کہندے سانو سمجھ نہیں آوندی تینوں کیا کہنے لاری اڈے جا بولو سبحان اللہ یہ تو جڑے بہتے ممی ڈیڈی مسلمان نہیں بس سارے قرآن پڑھتے میں کہتا تینوں یہی تمام آگے محرم آندا پیا ہے میں مسئلہ سمجھاوندا ہونا میں کیا گل داڑیاں تے قرآناں تے نمازاں تے ہوندی نا تے امام حسین کدی کربلا چ نہ جاندے چونکہ داڑھی تے یزید تے اودے لشکر بھی ایسی نمازاں تے ادھر بھی سی اذاناں ادھر بھی سی قیام ادھر بھی ایسی لیکن امام حسین نے یہ نہیں دیکھا بھی داڑیاں نمازاں قرآن ہر شے ہے سبحان اللہ امام علی مقام دسنا چاہ رہے سن اوے یزیدہ تے اوے یزیدیو تہاڈا کلمہ تے ہے نمازاں تے ہیں پر نظریہ او نہیں جڑا میرے نانا نے عطا فرمایا ہے اگر وہ نظریہ او کردار باقی ہوندا امام علی مقام کبھی بھی اودے نال جنگ نہ کر دے ہن سمجھ آئی سنگیو اس واسطے ہے جڑیاں بینا تے توتیاں سناوندے نے نا لوگ اینا باجے دے منہ والے دی گلاں نہیں سننیاں سارے ٹھیک ہوتے ہیں پوری یہ مولویوں کا اپنے اختلاف ہوتے ہیں میں کہا تیرے پیو نہ کوئی نہ لڑے کہندا اسی تیرے واسطے مر گیا تو ساڈے واسطے مر گیا کیا بلے ہو شیرا اتنی پیو واسطے غیرت حسین کے لیے کون کرے جناب ابو بکر کے لیے کون کرے حضور کے لیے کون کرے کچھ خدا کا خوف کریں اپنے عقیدے کو بھی دیکھو اپنے عمل کو بھی دیکھو دوستان عزیز پہلے اپنے نظریوں کو ٹھیک کرو اور حضرات علماء جتنے آپ کے ہیں ان علماء کے پاس بیٹھا کریں ان سے پوچھا کریں ہمیں نظریہ کیسے رکھنا ہے بالخصوص جہاں سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا 4 ہستیاں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہیں جی انہیں تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا تھا نہیں جی وہ تو نور نہیں تھے نہیں جی ان کا تو میلاد نہیں کرنا نہیں جی ان کی زیادہ شان نہ بیان یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگایا کریں یہاں درود نہ پڑھا کریں وہ مدینے کیسے سنیں گے میں کہا تم ہی بندے دا پتر نہیں ہوئے بات آ جاتی صحابہ پر نہیں جی انہوں نے اہل بیت کے حق پر ڈاکہ مارا ہے نبی پاک جب پردہ فرما تو صحابی تو کوئی تھا ہی نہیں وہ تو سارے اپنے اپنے گھروں چلے گئے سن فلانا سن میں کیا لانتیا جڑے ہن تائیں روزے دے وچ نال نے سنی بولے جی ہاتھ چوک کے بولے دوسرے چلے گئے صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اور تیسرے تاجدار ختم نبوت اللہ آپ کو خیر و برکت تاجدار ختم نبوت اور تیسرے آ جاندے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیاری آل کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں جی آل دی اتنی شان نہ بیان کرو تم تو بہت علی علی کرتے ہو بہت حسین حسین کرتے ہو اتنی شان نہ بیان کیا کرو میں کہا کیوں کتے یزید تو نہیں ہو گیا تیرے کو سن نہیں ہوندی بھائی دیکھو پتر بن یار وہ پاک ہستیاں ہیں
وہ جنتی لوگ ہیں, سبحان اللہ, وہ قرآنی شخصیات ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ولیوں کے پیچھے پڑ جدو پتہ بھی ان سے ابن کو شاخیات تاں سانو سائیاں آہو نہیں چھڑنا, اہل بیت کو کہا تا نہیں چھڑنا حضور کو. اب یہ باتیں کرتے ہیں گنے چنے لوگوں کو, اتائیں ساڑھے سنے ساڑھے سامنے تو نہیں کی تھی, تو میں کہا تو امام بخاری ہے تو تیرے سامنے کرنا ضروری ہے, تینوں ساڑھے تے کوئی نہیں یقین, اسی تینوں کتابوں بخواہ چھاڑنے ہیں. دوستانی مکرم یہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے. خدا دا نام منو, میں تو تقریر دے موڑے چاہ کے جی تقریر سن کے تو اڈے دل چ اللہ رسول صحابہ اہل بیت اور اولیاء دی محبت آ جاوے تو سچا جے, یدی تقریر سن کے نہ دی محبت نہ آوے جھوٹا جے. خدا کا خوف کرو یار, ایسے لوگ آ گئے. اور حضور نے فرمایا تھا, فرمایا بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو پہلوں پر طعن و تشنیع کریں گے, پہلے بزرگوں کو برا کہیں گے. آج جو پہلے کوئی داتا صاحب نے جڑے ہے, میں کیا 1000 سال ہو گیا داتا صاحب نو گیا, پر کیا بات ہے, نسل در نسل کتے اجے بھی پونکی جاندے, پر صدقے جاواں داتا تیرے ڈیرے تو کل بھی واسطہ سی تے اج بھی واسطہ ہی پیا. نہیں توجہ فرمائی آپ, یہ واسطہ ہی رہنا ہے. گرامی قدر حضرات, بہرحال حدیث پاک جو مسئلہ تے ثابت ہو گیا نا, فرمایا بعد میں کچھ ایسے آئیں گے لوگ کمینہ صفت بھی ہوں گے, او اپنے تو پہلے بزرگاں نو گلاں کرن گے, انہوں نے ہے نہیں کیتا, انہوں نے ہے نہیں کیتا, انہوں نے ہے نہیں کیتا, حالانکہ تیرے سارے ماں پیو مسلمان ہونے ہی کیتا. جہاں اسلام کس نے پھیلایا, آخر بر صغیر میں بزرگوں نے پھیلایا. تو میں کہتا ہوں بچ کو ہے بھی صحیح, کہندا نہیں. میں کہا پھر تو سچ ہے. خدا کا خوف کرو یار, اپنے بزرگوں کو کچھ نہ کہا کرو, ان بزرگوں کی ہسٹریاں پڑھا کرو, بیان کیا کرو, ان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کیا کرو جیسے انہوں نے بسر کی ہیں. اور دوسری بات, عقیدہ جب درست رکھیں اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو آپ نے قرآن کی تشریحات و توضیحات بصورت حدیث بیان فرمائی, اپنی زندگی کو اس کے مطابق عمل کیا کریں. بالخصوص 2 چیزیں ہوتی ہیں عمل کی دنیا میں, بالخصوص 2 چیزیں, ایک ہوتا ہے حقوق اللہ, ایک ہوتے ہیں حقوق العباد. حقوق اللہ کا مطلب جو اللہ کے حق ہوتے ہیں, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, یہ اللہ کے حق ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا, جنت پر, دوزخ پر, فرشتوں پر, سارے نبیوں پر, رسولوں پر, مرنے پر, مرنے کے بعد قیامت والے دن اٹھنے پر, سارے ایمانیات ہیں. ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے, اللہ کے حق پورے کرنا ضروری ہے. اور دوسری چیز ہے حقوق العباد, ماں باپ کا حق, بیوی کا حق, بچوں کا حق, پڑوسیوں کا حق, رشتہ داروں کا حق, مسلمانوں کا حق, محلے کا حق, ملک کا حق. یہ سارے حقوق پورے کرنے چاہیے. اور یاد ان میں بھی حقوق اللہ نہیں, حقوق العباد کا زیادہ پوچھا جائے. زیادہ بڑے حقوق اللہ ہیں. توجہ ہے؟ کوئی نہیں مطلب تیریاں ریساں مٹیاں ہو جان گیا, ٹینشن نہ لائے. چنگے چنگے ساڑی تقریر سن کے ریس ہو جاندے نے, تو کی شاید بولو ذرا سبحان اللہ پیار دینا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تینوں یہ نہیں سینس کوئی نہیں بھی دے, اللہ رسول دیاں گلاں ہوندیاں تو ریساں پیا دینا. میں تیری سکوٹر ٹھنڈی صحیح, پر میں ہر شاید تیری مدد کراں گا. یار یہ دیکھو, یہ سینس نہیں ہے لوگوں کو, مجھے نہیں پتا ان کا کیا ذہنی معیار و مقام ہے, لیکن اتنا سینس بندے کو ضرور ہونا چاہیے. خیر بہرحال کوئی کچھ بھی کرتا رہے, حضور کی شان کے ڈنگ کے تو عاشق بجاتے ہی رہیں گے نا. توجہ ہے؟ حقوق اللہ, حقوق العباد, ان میں بڑے اور عظمت والے وہ حقوق اللہ ہیں, لیکن زیادہ سختی سے پوچھا حقوق العباد جائے گا. کیونکہ اللہ فرمائے گا ادھر دیکھ لو, میرا حق ہے, تو نے پورا کیا نہیں, یہ تیرا میرا مسئلہ ہے, پر میں نے یہ دس میری مخلوق تو نہیں تنگ کیتا, کہ مخلوق کے حقوق بھی پورے کرو. اس میں سارے حقوق آتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیا میں امید کروں گا کہ ہم حقوق اللہ کے لحاظ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا لحاظ بھی رکھیں گے؟ ان چیزوں کو بھی رکھو. اور سنو, یہ جو ہمارے یہ معاملات ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں. ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم ایسی نیک محافل میں تعاون کریں, رکاوٹیں نہ ڈالیں.
یہ بھی آپ کو ہوتا ہے، چونکہ اگر آپ کی وجہ سے رکاوٹ اور بدمزگی محفل میں بنی نا تو آپ سے بڑھ کے بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کی وجہ سے رونق بڑھ گئی، تیری باقی ساریاں گلاں ایک پاسے، ایڈی سونی محفل سجاؤن دا مول ایک پاسے۔ اس واسطے کدی پنگا نہ رہی محفلاں دے نال۔ کئیاں ہوندا میں ایتھے ساؤنڈ نہیں لگن دینا، کہ تو ٹینشن نہ لے، یہ ایتھے ہی لگنے۔ کئی کہتے تھے محفل نہیں ہوگی، فلانا نہیں ہوگا، اجازت لو، کرونا پہ گیا۔ میں کہ جو مرضی پہ جائے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی تیری شان کو اللہ بڑھائے گا۔ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، اور اللہ جب پڑھاتا ہے تو اپنی مخلوق کے ذمہ بھی لگا دیتا ہے۔ ہاں بھائی آ گیا جی ربیع الاول، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر پہرا دو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر کوئی مولوی پیر اس کی باتوں سے اہل بیت یا صحابہ کرام کی نفرت نظر آئے، لنڈے کا پیر ہے وہ، لنڈے کا مولوی ہے بالکل، وہ رافضیوں کے چرنوں میں چرنے والا ایرانی جانور ہے، نہیں ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق۔ ہم تو وہ ہیں جو امام احمد رضا بریلوی کے ماننے والے لوگ، داتا صاحب کے نوکر ہیں، ان کے عقائد پر آ جاؤ، اپنے عمل کی بھی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرو۔ اللہ نے کبھی وفا کی تو انشاءاللہ یہاں سے آگے آپ کو سبق سنائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے ہوتے ہیں؟ 15-20 بندے نہیں بولے، تسی کی شبیخ دے ہو، دیکھیا کرو مدنی چینل، مجھے امید ہے بچوں کے لیے بھی چلتا ہے، دیکھیں گے بھائی؟ اور سن لیں، دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم و تحریک ہے۔ میں اس لیے بات کرتا ہوں، یہ دا بندہ کھاوے ہو دے گیت نہ گاوے گل چنگی نہیں ہوتی۔ مینوں میرے سائیاں رنگ لایا تو میں نہ کیوں نہ لواں؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، دعوت اسلامی کے ساتھ آپ لوگوں کا پہلے ہی بڑا تعاون ہے، بہت تعاون ہے۔ اسی تواڈے واسطے چوڑیاں چوک کے دعا کرنے ہیں، لیکن امید یہ ہے کہ آپ آئندہ سے بھی تعاون بڑھائیں گے۔ جمعے کے دن بر وقت جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کریں، نماز اذان کا وقت ہو تو اذان سن کر مسجد کا رخ کریں، اور جب بھی کوئی دینی نیک محافل ہو ضرور تشریف لایا کریں، کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کر ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔